वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह स्टूडेंट्स. So today we are going to start our next article, which is electric potential due to electric dipole. So in the first chapter you have already done electric field due to electric dipole. So बेटा इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਐਨੀ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ. So first of all we'll find the electric potential on axial line of dipole. So let us take a dipole. This is point A and this is point B, and on point A we'll get charge minus Q, and on point B we'll get charge plus Q. Okay, so this is the axial line of dipole. If we extend it on both sides, okay, so the length of dipole is, let us take it 2a. this is the center of dipole. so beta OA साडे कोल की है देखो A, and also OB, it is also equal to A. So we have already done the electric potential due to point charge Q is given by Q by 4 pi epsilon naught R, where R is the distance between the observation point and the source charge Q. So let us take a point P here, and the distance of point P from O, this distance point P from O, let us take it R. That is, this is our observation point where we want to find the electric potential due to electric dipole. So बेटा हम देखो बड़ा सिंपल है. ठीक है. साडे कोल एक प्लस माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल दे विच, एक प्लस क्यू चार्ज. क्लीयर. सो असी सब तो पहला माइनस क्यू चार्ज दे करके इस पॉइंट P दे उपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करांगे. क्लीयर. एंड दैन प्लस क्यू चार्ज दे करके इस पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करांगे. क्लीयर. तो उन्होंने दोनों इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का असीं की कर देंगे, सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P which is on axial line of dipole due to this dipole. Okay, so let us take the total potential at point P due to this dipole as V, and let it be equal to V1 plus V2, where V1 is electric potential at point P due to this charge minus Q charge. Okay, so we'll just use that formula, and minus Q by 4 pi epsilon naught, and this is the distance of point A and P. Distance between the point A and P is, this will come out to be AP. Okay, next plus V2. so V2 is this due to this charge. so बेटा हम असी इत्थे वैल्यू फिल कर देंगे Q चार्ज दे करके पोटेंशियल दी. ठीक है. Q by 4 pi epsilon naught. so इत्थे साडे कोल की आएगा BP. क्लियर स्टूडेंट्स. सो हुण देखो असी BP एंड AP की वैल्यू फिल करनी है. माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. AP की वैल्यू देखो साडे को की होएगी, दिस इज AP. क्लियर. दिस इज R and this is A, R plus A. Okay, A plus R, this is AP. So AP will come out to be R plus A. Okay students, and after that this is Q by 4 pi epsilon naught
BP. What is BP? This is BP. Okay, so this is R, this is A. If we are subtracting this A from this R, we'll get BP. Okay students, so here R minus A. So next beta देखो, we'll get common Q by 4 pi epsilon naught, bracket start, and देखो इतने क्या आएगा, माइनस साइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ वाली टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ माइनस वाली टर्म ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो ਇੱਥੇ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 by R minus A minus 1 by R plus A। सो इस ब्रैकेट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ। सो by solving this bracket we'll get, this is R A minus B into A plus B comes out to be A square minus B square. This is R square minus A square, and here it will come R plus A and minus R minus A. Okay students, so beta let us solve it. So V will come out to be Q by 4 pi epsilon naught R square minus A square. So R plus A minus ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, ठीक है, माइनस R plus A. So R and R cancel, so we'll get Q, this is A plus A, 2A, Q into 2A by 4 pi epsilon naught R square minus A square. Clear है students? So बेटा हम देखो Q into 2A साढ़े कोल की होंदा है dipole moment. We'll get the magnitude of dipole moment as Q into 2A. Okay, so we'll put the value here, small p by 4 pi epsilon naught R square minus A square. So this is the value of electric potential at point P on the axial line of electric dipole. So ਹੁਣ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ स्पैशल केस हैगा साडे कोल, देखो आई होप यू हैव डन इट, ठीक है, दा स्क्रीनशॉट लैके फिर इनू अगे तुसी नोट कर लो। क्लीयर है? सो नैक्सट देखो, so what is the special case that if point R, this point P sorry, is very far away from the center of dipole, then क्या होएगा बेटा, देखो ये R जेड़ा है, ठीक है, साडे कोल R बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सो R विल बी वेरी ग्रेटर देन A। दैन साडे कोल पॉइंट P दे उपर जेड़ा कि काफ़ी दूर हैगा डायपोल तो उहदे उपर पोटेंशियल क्या आएगा साडे कोल, देखो V इज इक्वल्स टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो R विल बी वेरी ग्रेटर देन A, सो वी कैन निगलेक्ट A स्क्वायर फ्रॉम हेयर, ठीक है। देखो क्योंकि R स्क्वायर जेड़ा है वो होर वड्डा हो जाएगा, ठीक है, तो A स्क्वायर छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो R स्क्वायर होर ज़्यादा गैप होएगा R स्क्वायर ते A स्क्वायर दे विच, सो इस करके की होएगा इत्थे असीं A स्क्वायर नूं निगलेक्ट कर देंगे, सो इत्थे क्या आएगा सिंपली P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो दिस इज द value of electric potential at a point P which is very far away from the center of the electric dipole at a distance R. Okay students, so let us move to our next article, that is electric potential due to electric dipole on equatorial line of dipole. So let us consider an electric dipole. Suppose here is point A and this is point B,
this is point A and this is B. So we'll place a charge minus q at point A and a charge q at point B. This is the line joining the electric dipole, and the length of the electric dipole is 2A. This is the center of electric dipole. So we all know that OA will be equal to A and OB will be equal to A. This is A and this is A. So this is the equatorial line. As you all know, the plane perpendicular to the axial line of electric dipole passing through the center of dipole is known as equatorial plane. Let us assume any point P on this equatorial line. So बेटा असी कंसिडर करना है कि ये पॉइंट जिहड़ा आ ये साडे कोल सेंटर ऑफ डायपोल तो r डिस्टेंस की दूरी दे उत्ते, ठीक है. सो वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट P. ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के उपर असी इस दे उपर इस इलैक्ट्रिक डायपोल दे करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सो सानू माइनस क्यू चार्ज दे करके इत्थे पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा. आफ्टर दैट विल फाइंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज at this point and will take the algebraic sum of both the potentials and get the value of electric potential due to this electric dipole on this point P. So by applying Pythagoras theorem, okay, we will get the distance between minus q and P. This is r, so this angle is 90 degree and this is A. We will get this distance as r square plus A square. Similarly, this distance is also r, this distance BP is equal to r square plus A square. So let us assume that total electric potential at point P due to this electric dipole is V, and this is equals to V1, which is electric potential due to charge minus Q, plus V2 electric potential at P due to charge plus Q. So let us put the value. B is equals to V1 minus Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो बेटा देखो साडे कोल AP, ठीक है, इत्थे क्या आएगा AP डिस्टेंस आएगा. नेक्स्ट प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इत्थे क्या आएगा BP. विल जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ AP एंड BP इन टर्म्स ऑफ R एंड A. साडे कोल वैल्यू क्या आएगी माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट under the root r square plus A square. Similarly here plus Q by 4 pi epsilon naught under the root r square plus A square. Clear students? We have just put the value of AP and BP here in terms of R and A. So next देखो, we have to just take the sum of these two terms. So you can say this term is negative of this term. First term is negative of this term, so this will cancel out and the result will come out to be 0. So from here we come to know that कि किसी भी पॉइंट ते बेटा अगर असी देखो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट ते असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल दे करके फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0. Clear? So this result is true for any point on equatorial
line of electric dipole. Clear students? So our next article is electric potential due to electric dipole at any general point. Clear बेटा? So first case असी कीता सीगा एक्सियल लाइन के उपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल दे करके, दैन इक्वेटोरियल लाइन के उपर. नाउ वी आर टेकिंग जनरल केस. क्लीयर? असी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स चूज कर सकते हैं स्पेस दे विच किते भी. क्लीयर? सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर an electric dipole. This is point A and this is point B, and we have placed minus q charge on point A and plus q charge at point B. So beta, this is center of dipole, and you all know that this is length of dipole, which is represented by 2a. OA will be equal to A and OB will be equal to A. So now we will not take the point on axial or equatorial line, we will just take the point at any random location. Suppose this is the point P, where we want to find the electric potential due to this electric dipole. So let us take the distance between center of dipole O and point P as this distance, take it as r. Clear है बेटा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर तो असी r लेना. So this direction OP, okay, the line joining O and P is making an angle theta with dipole moment vector. You all know that electric dipole moment vector उदी बेटा डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू तो प्लस क्यू. क्लीयर है? सो इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैक्टर जिहड़ा है, ठीक है, असी स्मॉल p दे नाल डिनोट करते हैं. क्लीयर? दिस इज स्मॉल p. ठीक है? सो हुण जिवें तुसीं सारिआं नूं पता है कि सपोज दिस इज vector A, yes, this is x-axis and this is y-axis, making an angle theta with x-axis. This is vector A. So बेटा असी इस वेक्टर नूं रिजोल्व कर सकते हैं. ठीक है? टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे विच. ठीक है? टू कंपोनेंट्स दे विच दिस कंपोनेंट विल कम आउट टू बी A cos थीटा. ठीक है ना? द मैग्नीट्यूड एज कंपोनेंट द मैग्नीट्यूड क्या आएगा, A cos थीटा. Similarly here this component will be A sin theta. यही सेम चीज़ असी इत्थे अप्लाई करनी है. दिस इज फ्रॉम A to B, दिस इज वैक्टर P. ठीक है? डायपोल मूवमेंट वैक्टर. हुण देखो असी इस वैक्टर नूं रिजोल्व करता. ठीक है? अलॉन्ग OP एक कंपोनेंट ले लिया. ठीक है? एक कंपोनेंट किहड़ा होएगा साडा, P cos थीटा. ठीक है? क्योंकि थीटा एंगल बन रहा ना साडा OP दे विच ते P वैक्टर दे विच. क्लीयर है? एंड एक कंपोनेंट असी इहदा दूसरा कित्थे ड्रॉ करदा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो इधर. ठीक है बेटा? यह वाला कंपोनेंट. क्लीयर है? हुण साडे कोल देखो दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा, ते यह वाला कंपोनेंट ये साडे कोल की होएगा P sin थीटा. क्लीयर है? सो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, यह जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ P, जिहड़ा साडे कोल P cos थीटा कंपोनेंट आ, ओदी एक्सियल लाइन दे उपर आ रहा. ठीक है ना? देखो ओदी एक्सियल लाइन क्या है, P cos थीटा कंपोनेंट दी. एक्सटेंड करो दोनों साइड पे. ठीक है ना? एक्सियल लाइन दे उपर आ गया. क्लीयर? एंड ए पॉइंट P जिहड़ा आ P sin थीटा कंपोनेंट दे की आएगा, इक्वेटोरियल लाइन के उपर आएगा. ठीक है ना? क्योंकि यह दोनों जिहड़े कंपोनेंट है बेटा की है साडे कोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है? सो असी सिंपली इस कंपोनेंट दे करके
पॉइंट P ते पोटेंशियल फाइंड करांगे, दैन इस कंपोनेंट दे करके पॉइंट P ते पोटेंशियल फाइंड करांगे, दोनों का सम कर देंगे तो साडे कोल इस डायपोल दे करके जिहड़ा पोटेंशियल आ वो आ जाएगा। सो देखो असीं तो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट V बी द टोटल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलैक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P। ठीक है बेटा। सो हुण देखो ये की होएगा, दिस विल बी P cos थीटा। पहला असीं P cos थीटा कंपोनेंट दे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हैगा वो लिखांगे P cos थीटा बाय एक्सियल लाइन के उपर असीं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कढ़ चुके हैं, विच इज़ देखो साडे कोल ए आई सी साडे कोल वैल्यू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज R स्क्वेयर। ठीक है बेटा। सो असी जी स्पैशल केस के वैल्यू कढ़ी सी वो लगा रहे हैं। सो हुण देखो इत्थे की आएगा P cos थीटा बाय, क्योंकि P की जगह तो आप की साडे कोल P cos थीटा, P cos थीटा की एक्सियल लाइन लै रहे हैं ना असीं, हुण P की एक्सियल लाइन नहीं लै रहे, P cos थीटा की लै रहे हैं। दिस इज P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज the distance from O to P, it is R square। सेंटर ऑफ P cos थीटा कंपोनेंट की हो गया, वही होएगा ना, क्लियर। सो नेक्स्ट देखो प्लस हुण P sin थीटा कंपोनेंट, P cos थीटा ते P sin थीटा कंपोनेंट दोनों की बनाते हैं, P नूं बनाते हैं। ठीक है। सो इस करके P sin थीटा कंपोनेंट का भी असीं जिहड़ा हैगा कंट्रीब्यूशन उन्होंने ऐड करांगे, पर तुहानूं पता है कि इक्वेटोरियल लाइन के उपर पॉइंट P आ रहा है, P sin थीटा कंपोनेंट की इक्वेटोरियल लाइन के उपर आ रहा है पॉइंट P। सो P sin थीटा कंपोनेंट जिहड़ा है उहदे करके जिहड़ा कंट्रीब्यूशन होएगा वो की होएगा 0। क्लियर। सो टोटल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट R will be given by which is making that is R vector actually is making an angle theta with P vector। so ये बेटा साडे कोल की आएगा P cos theta by 4 पाई epsilon naught R square where R is basically OP। क्लियर है ना। ठीक है। सो इसका मतलब सानू थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए है, ठीक है, एंड R की वैल्यू पता होनी चाहिए है। क्लियर। असी किसी भी पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डायपोल के करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। सपोज जिवें एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, स्पैशल केस पहला करते हैं, तो ज़्यादा तुहानूं क्लीयर होएगा। देखो हुण आपां सपोज कर लीए कि ये जिहड़ा P पॉइंट आ, ठीक है, ये कित्थे आ, डायपोल की एक्सियल लाइन। इसका मतलब है थीटा है जो P cos थीटा कंपोनेंट किधर नूं आ जाएगा, इधर नूं। ठीक है ना, क्लीयर ना। फिर डायपोल की डायरैक्शन ही इधर नूं हैगी है। P पॉइंट अपना ऑलरेडी आप डायपोल की जिहड़ी एक्सियल लाइन उहदे उपर लै रहे हैं। ठीक है। तो फिर हुण देखो थीटा की हो जाएगा साडा 0। ठीक है। तो फिर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगा एट एक्सियल लाइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। cos 0 इज इक्वल्स टू 1। सो साडा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा की आएगा, देखो इट विल कम आउट टू बी P इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। P इंटू 1 इज P। ठीक है। यह देखो एक्सियल लाइन वाला साडा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ए वाले केस तो जनरल केस तो असी एक्सियल लाइन वाला भी कट सकते हैं। ठीक है। सो सिमिलरली अगर असी देखो एट इक्वेटोरियल लाइन कटते हैं, एट इक्वेटोरियल लाइन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सिंपली की है, देखो V इज इक्वल्स टू दिस इज P cos थीटा की होएगा। ठीक है। जे आप इक्वेटोरियल लाइन लेने तो फिर इतने होएगी लाइन। ठीक है। सो थीटा विल बी इक्वल टू फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। यह इक्वेटोरियल लाइन है सपोज करो। ठीक है। तो आ P दे नाल 90 डिग्री एंगल बना रही। ठीक है। सो असी इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे cos 90, ठीक है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एंड cos 90 की तुहानूं पता है। ठीक है। सो cos 90 की आएगा P cos 90 इज 0, सॉरी। ठीक है।
cos 90 is 0, the result comes out to be 0। ਇਹਦਾ मतलब जनरल केस तो ਅਸੀਂ एक्सियल लाइन का ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आ वो भी फाइंड कर सकते हैं एंड इक्वेटोरियल लाइन का इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। क्लीयर स्टूडेंट्स, किसी भी थीटा, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा किसी भी पॉइंट पे एक्सियल लाइन के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एट एनी पॉइंट, ठीक है, इन द स्पेस थीटा की वैल्यू वेरी करी जाएगी, ठीक है ना। थीटा ते आर साडे को वेरीएबल होणगे जेकर असीं पॉइंट की लोकेशन बदलते हैं। क्लीयर, तो सो असीं जनरल जिहड़ा साडे कोल है फॉर्मूला आ, इस फॉर्मूले दे नाल किसी भी पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक डायपोल दे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लीयर, एक गल दा बेटा तुसीं होर ख्याल करोगे इत्थे कि असीं किसी भी पॉइंट पी के उपर जिहड़ा कि सेंटर ऑफ डायपोल, दिस इज डायपोल सपोज माइनस क्यू एंड दिस इज क्यू, ठीक है, हाँ, डायपोल मूवमेंट जिहड़ा माइनस क्यू तो डायपोल मूवमेंट वैक्टर जिहड़ा है माइनस क्यू तो क्यू तक होगा, ठीक है ना। क्लीयर, ये सानू क्लीयर है। एंड किसी भी पॉइंट पी के उपर जिहड़ा कि सेंटर ऑफ डायपोल तो आर डिस्टेंस की दूरी के उपर, ठीक है ना, तो डायपोल मूवमेंट वैक्टर दे नाल जे पोजीशन वैक्टर जां इत्थे यूनिट वैक्टर आपां लै लईए इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है, आर दी डायरैक्शन दे विच आपां यूनिट वैक्टर लै लईए आर कैप, ठीक है ना। सपोज दिस ओपी इज आर वैक्टर लै लो, ठीक है ना, एंड आर कैप जिहड़ा हैगा ये साडा ओपी दी डायरैक्शन च यूनिट वैक्टर हैगा, ठीक है बेटा। सो साडे कोल एक्सप्रैशन आउंदा सीगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दा V इज इक्वल्स टू P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। कीप इट इन माइंड कि सब तो पहला कि ये जिहड़ा एक्सप्रैशन हैगा साडे कोल ये बेटा उदों करैक्ट हैगा आ, ठीक है, उदों एप्लीकेबल हैगा आ वैन, ठीक है, ए एंड आर, ठीक है, इन्हां ते कंडीशनस अप्लाई होंदियां है कि ये वाला एक्सप्रैशन साडा कदों वैलिड। नंबर 1, ठीक है, उदों वैलिड होएगा जदों आर की होएगा लार्ज, बहुत लार्ज वैल्यू होएगी आर की, ठीक है। क्लियर, एंड ए की होएगा स्मॉल, दैट इज डायपोल की होएगा पॉइंट डायपोल होएगा, मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं होएगा, ठीक है, पॉइंट डायपोल। ए की होएगा साडा स्मॉल होएगा। क्लियर, उदों ये वाला एक्सप्रैशन जिहड़ा साडा वैलिड। क्लियर, एंड वन मोर थिंग कि देखो अगर असी इस एक्सप्रैशन दे विच दिस इज वैक्टर P, ठीक है, P वैक्टर है, दिस इज P cos थीटा कंपोनेंट, दिस इज P sin थीटा कंपोनेंट, दिस इज r कैप यूनिट वैक्टर, ठीक है, दिस इज r कैप यूनिट वैक्टर, दिस इज P वैक्टर। क्लियर, डायपोल मूवमेंट वैक्टर। इत्थे असी P cos थीटा नूं बेटा देखो किहदे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, P वैक्टर, ठीक है, डॉट r कैप, P वैक्टर डॉट आर कैप, आर कैप इज यूनिट वैक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होएगा, ठीक है। P वैक्टर डॉट आर कैप, ये क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट लो, P आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, ये साढ़े कोल की आ गया P cos थीटा। क्लियर है, सो इसका मतलब असी इस इक्वेशन नूं किवें लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रिटन एज P वैक्टर डॉट आर कैप बाय 4 पाई, सॉरी दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, सो इत्थे बेसिकली की है डॉट प्रोडक्ट इनवॉल्व है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी एज यू ऑल नो, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होंगे साढ़े को स्केलर। क्लीयर, सो ये वाला एक्सप्रैशन असी इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लीयर स्टूडेंट्स, एंड एक गल का होर असी ख्याल करना है, तुसीं देखो इस एक्सप्रैशन अगर आप देखते हैं, इस एक्सप्रैशन दे विच असी
दो कंडीशनस लईआं कि आर जिहड़ा आ लार्ज, ठीक है, दिस एक्सप्रैशन इज ट्रू फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ आर एंड स्मॉलर वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। सो हुण इहदे विच एक गल दा देखो, ठीक है, जदों आर की वैल्यू लार्ज है, ए की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू लार्ज होने का मतलब कि ऑब्जरवेशन पॉइंट काफ़ी दूर है, ठीक है, सेंटर ऑफ डायपोल तो। ए की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब कि डायपोल जो लेंथ नहीं है, इट इज़ पॉइंट डायपोल, बेसिकली ए जोड़ा, ठीक है, 2a डिस्टेंस है वो घट है, ठीक है, दोनों चार्जिस के बीच डिस्टेंस घट है। हुण देखो इत्थे इन्हां दो कंडीशनस नूं अपनियां, ठीक है, नज़रां च रख के असीं इस एक्सप्रैशन की जिहड़ी वरतों करनी है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के उपर, मतलब मान लो देखो अगर असी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री लैंदे सीगे, साडे कोल पॉइंट आउंदा सीगा, ठीक है, इधर आउंदा सी, सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, थीटा 0 अगर पॉइंट इत्थे होएगा ऑब्जरवेशन पॉइंट, अगर मान लो पॉइंट जिहड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट साडा इस डायरैक्शन च, फिर की होएगा, थीटा की हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, और पाई रेडियन, ठीक है ना बेटा। सो हुण देखो फिर साडे कोल एक्सप्रैशन क्या आएगा, अगर थीटा 180 डिग्री है, पी कॉस थीटा दैट इज कॉस पाई, ठीक है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर स्क्वायर। हुण कॉस पाई की हुंदा साडे कोल 1, सो इट मीनस इत्थे बेटा वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू साडे कोल नैगेटिव हो जाएगी। हुण देखो ये बड़ा सिंपल, अगर असीं इसनूं डायग्राम तो भी देखते हैं, देखो इधरली साइड ते नैगेटिव चार्ज वाली साइड ते इंपैक्ट ज़्यादा किहदा होना है, नैगेटिव चार्ज का, क्योंकि ऑब्जरवेशन पॉइंट के नेड़े है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, ठीक है। सो इस करके पोटेंशियल नैगेटिव, इस साइड के उपर पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट ज़्यादा होएगा, क्योंकि नैगेटिव चार्ज ऑब्जरवेशन पॉइंट तो दूर है, पॉजिटिव चार्ज नेड़े है, क्लीयर। सो इस साइड पर पोटेंशियल साडा की आएगा, देखो पॉजिटिव। तो अगर असी डायपोल की डायरैक्शन उल्टा कर दें, ठीक है, फिर की होएगा, फिर इधर साडे कोल की आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इधर साडे कोल की होएगा नैगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। फिर डायपोल मूवमेंट वैक्टर की डायरैक्शन इधर आएगी, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो जानी, ठीक है, ये गल का असीं ख्याल करना। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। सो ये बेटा बेसिकली साडे कोल फॉर्मूले है, ठीक है, इलैक्ट्रिक डायपोल के करके जो पोटेंशियल असीं किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के करके असीं पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो विल फाइंड करना है, विल अप्लाई दिस फॉर्मूला गिवन डायपोल दे करके, ठीक है, गिवन मीडियम दे विच जिहड़ा पोटेंशियल है, इस फॉर्मूले तो देखो पता चल रहा है किहदे उपर डिपेंड कर रहा है। जेकर असीं थीटा एंड आर नूं वेरी करते हैं, क्लीयर ना, तो देखो थीटा एंड आर नूं वेरी करते हैं तो पोटेंशियल चेंज करेगा, इसका मतलब पोटेंशियल की डिपेंडेंस कित्ते आ रही है, थीटा एंड आर के उपर। थीटा चेंज करांगे पोटेंशियल चेंज करेगा, आर चेंज करांगे पोटेंशियल चेंज करेगा। नैक्सट इधर आओ, पॉइंट चार्ज के करके जो पोटेंशियल, ठीक है, गिवन चार्ज के करके गिवन मीडियम के विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आ वो किहदे ते डिपेंड करेगा। अगर असीं लोकेशन चेंज करते हैं सिंपली, ठीक है, सिंपली आर के उपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लीयर है ना। सो हुण देखो बेटा, हाँ जी, दिस वॉज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, ठीक है, थीटा एंड आर पर डिपेंड कर रहा है, की है आर के उपर डिपेंड कर रहा है। नैक्सट बेसिक डिफरेंस इज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल जोड़ा बेटा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होएगा। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक मतलब सपोज है देखो डायपोल है, ठीक है ना, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, यू ऑल नो दैट। एंड अगर आप की करते हैं, साडे कोल आर एंड थीटा नूं कॉन्सटेंट लै लेने, आर कॉमा थीटा कॉन्सटेंट लै लेने, ठीक है, आर एंड थीटा नूं चेंज नहीं करते, तो जिहड़ा एक सपोज, ठीक है, दिस इज डायपोल, इनू एक
एक्सिस ले लो, ठीक है। जेकर आप आर एंड थीटा नूं कॉन्स्टेंट रखते हैं तो सारे पॉइंट कित्थे होणगे, ठीक है। यह जिहड़ा सर्कल हैगा क्लीयर ना, वो एक्सिस से डायपोल प्लेस कर दो, आर ते थीटा नूं कॉन्स्टेंट मान के, ठीक है। एक सर्कल के उपर सारे पॉइंट आ जाएंगे जिहदी एक्सिस के उपर की पिया है, डायपोल पिया। अगर असी आर एंड थीटा कॉन्स्टेंट रखते हैं तो जिहड़ा डायपोल दे करके इलैक्ट्रिक पोटैंशियल आ वो बेटा की है, सिलेंड्रिकल सिमिट्री फॉलो करता है, सिलेंड्रिकल सिमिट्री। क्लीयर। ठीक है। दूसरे पासे अगर असी आइए, पॉइंट चार्ज दे करके इलैक्ट्रिक पोटैंशियल की जी डिपेंडेंस हैगी वो सिर्फ आर ते हैगी है, ठीक है। क्यू ते भी हैगी है सैल्यूलर, पर आप गिवन पॉइंट चार्ज की गल कर रहे हैं गिवन मीडियम के विच, ठीक है। अगर असी लोकेशन चेंज कर दें, मान लो इस पॉइंट चार्ज है, इत्थे लै लो पॉइंट, इत्थे लै लो, इत्थे लै लो, ठीक है। इत्थे आर चेंज करने दे नाल की होएगा, जी दूरी हैगी है, हुण इत्थे भी पोटैंशियल मान लो इत्थों एक 1 फीट, ठीक है, उपर लै लो, ठीक है। जिहड़ा पोटैंशियल आ वो भी उन्ना होएगा तो 1 फीट डाउन, ठीक है। इत्थे भी पोटैंशियल उन्ना होएगा, इधर 1 फीट, ठीक है। इत्थे भी उन्ना होएगा, इत्थे भी उन्ना होएगा, ठीक है। सिर्फ आर की डिपेंडेंस है, पॉइंट थीटा जिहड़ा है उत्ते नहीं डिपेंडेंस हैगी, तुसीं जिधर मर्जी ले जाओ पॉइंट आर, ठीक है। सो इहदा मतलब जेकर मैं इनू पॉइंट आर मान रहा, इनू आपां एक स्फीयर के सेंटर च रख दईए, ठीक है। सपोज करो आर जां तुसीं लै लो, ठीक है। दिस इज आर वैक्टर, ऑब्जरवेशन पॉइंट हैगा ए क्यू चार्ज, ठीक है। हुण इस ऑब्जरवेशन पॉइंट नूं तुसीं जिहड़ा आ, ठीक है, आर डिस्टेंस नूं कॉन्स्टेंट रख के जिधर मर्जी घुमाई चलो, ठीक है। तो ये बनेगा, स्फीयर बन जाएगा एक, ठीक है ना। सो दिस इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्लीयर। मतलब तुसीं लै लो कि एक बॉल है तुहाडे कोल, ठीक है। वो बॉल के सेंटर च तुसीं चार्ज प्लेस करता, पॉइंट चार्ज, उस बॉल के सरफेस के उपर पोटैंशियल की होएगा, सेम होएगा, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट आ, तुसीं जिहड़ा पॉइंट चार्ज उन्होंने सेंटर ते रखा होया। क्लीयर ना। तो बॉल के सरफेस से जिन्ने भी पॉइंट है ऑब्जरवेशन पॉइंट उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ डिस्टेंस की है, रेडियस के इक्वल, ठीक है ना। सो इस करके पोटैंशियल की होएगा कॉन्स्टेंट बॉल के सरफेस उपर, अगर तुसीं चार्ज पॉइंट चार्ज नूं स्फीयर के सेंटर ते रखा। इस करके इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, हाँ जी। हुण फॉर्मूला देखो बेटा, यदि डिपेंडेंस इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ड्यू टू डायपोल की डिपेंडेंस, ठीक है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर एट लार्जर डिस्टेंसिस, ठीक है। लार्जर डिस्टेंसिस के उपर है फॉर्मूला आपां जिहड़ा, ठीक है, कीता सीगा इस तो पहला वाला, ठीक है। जिहड़ा एक्सियल लाइन का लार्जर डिस्टेंस वाला केस आपां कीता सी, आर स्क्वेयर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए स्क्वेयर एट लार्जर डिस्टेंसिस। जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटैंशियल डायपोल दे करके वो वेरी करता है 1/r स्क्वेयर के नाल। क्लीयर। सो हेयर इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वेयर। यह आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डायपोल एंड अ पॉइंट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन।